for so many people to get recognized, and of course, from so many different dimensions in life. So be it business, be it wedding, be it designers, be it so many different nominees are there, and I think it's very beautiful from the organizer's point of view to give that platform to a lot of people to achieve an award and get motivated and push forward in life, to recognize their work for so many years. Yeah. Pardon me? Wedding. Nowadays is a wedding season. It's the most beautiful, special season of the year. So it's definitely motivating. I do a lot of performance, even on the weddings, appearances. So it's a very, very beautiful moments for the bride and grooms to get together, and it's special, and so will be tonight. So yeah, I wish everyone, all the viewers, a Merry Christmas and a Happy New Year. May the next year be even more prosperous, beautiful. May all your dreams come true, and may it be very, very mesmerizing. Thank you so much. I think weddings are beautiful. They are one of the biggest celebrations in most girls' lives, and Indians really like to celebrate it. And I'm a wedding designer, so it is the season where we love making the brides come out and become the best versions of themselves. We make them look even more prettier than they are, and make their moment even more memorable than it would be otherwise. So that's what we do, and that's why I'm very happy to be here and very happy to receive this award. Wedding gowns. Um, so the new wedding season is there after COVID, and people are really going all out, and everybody wants to look their best. And this is a season after 3 years of COVID. So it is really full of celebration, and people are really going overboard in what they're doing and looking really nice. I'd like to wish all the viewers here a very, very happy New Year. Well, weddings are the most important chapter of anybody's life, and weddings are always celebrated in a very grand scale, and it's a very special day in everybody's life. So here we're celebrating the wedding Icon Award. So of course it has to be a big celebration, and it's an award night. It's an award night. It's an honor to be here, and yeah, weddings, like I said, a very special moment. Mine was very special too. अरे वेडिंग से तो कितनी सारी यादें जुड़ी हुई होती है, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर एवरीबडी, सो ऑफकोर्स जब मैं भी वेडिंग की बात करती हूँ और अपनी वेडिंग को याद करती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं. एंड ऑफकोर्स इट्स अ ब्लेसिंग, एंड आई विश दैट एवरीबडी आउट देयर हु आर अनमैरिड ऑल्सो गेट मैरिड वेरी सून टू द लव ऑफ देयर लाइफ्स. वेल, क्रिसमस तो हर साल हम बहुत ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज माई मदर इज़ अ कैथलिक, सो आई एम हाफ कैथलिक टू.
तो क्रिसमस में तो बहुत सारी प्रेपरेशंस होती हैं, इतना टाइम नहीं मिलता है बिकॉज आई एम शूटिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, बट आई डू टेक आउट टाइम एंड डेकोरेट द क्रिसमस ट्री विद माई मदर एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन, वी हैव कुकिंग एंड एवरीथिंग at home and we have guests over, so it's of course it's a very big occasion for us. Christmas and Easter हमारे सबसे बड़े festivals होते हैं of the year, so yeah, it's going to be amazing and good fun this year also. बचपन से आई मीन हमारा एक ट्रेडिशन रहा है, whenever I'm here in the country, तो 12 बजे का midnight mass होता है, तो I attend the midnight mass with my parents, and also this year I'm planning to attend the midnight mass with my parents and with my husband of course. And then उसके बाद जो best memory Christmas से मेरी जुड़ी है लाइफ में वो ये है कि क्रिसमस में हर साल क्रिसमस ट्री के नीचे सांता क्लॉज मेरे लिए गिफ्ट छोड़ते हैं, एंड चाहे मैं बड़ी हो गई उसके बाद भी अब तक ये ट्रेडिशन है. आई नो दैट मे बी इट्स माई पेरेंट्स, बट आई स्टिल समवेयर डाउन द लाइन बिलीव दैट इट्स सांता क्लॉज हु इज गिविंग मी ऑल द प्रेजेंट्स फॉर क्रिसमस, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट क्रिसमस. फर्स्टली थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स जिनको काव्या का काम इतना पसंद आ रहा है. इट्स अ वेरी गुड फीलिंग जब मैं सुनती हूँ कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है. बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, लाइक यू नो अनुपमा इज़ नोन फॉर हैविंग ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड जो हमारे प्रोड्यूसर है राजन शाही सर एंड द एंटायर टीम इज़ ऑलवेज हमेशा वो लगे रहते हैं कि कैसे ऑडियंस को झटके पे झटके देते रहें. सो आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू विटनेस अ लॉट मोर एंटरटेनमेंट वेरी सून. Happy New Year to all of you. It's a beautiful new year which is coming ahead, and just have all your dreams in your mind and just focus on all your dreams, on making it happen and making your dreams come true. I wish you all a very happy new year. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रांड आइकन एंड वेडिंग आइकन को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ. इट्स अ सीजन ऑफ वेडिंग, सो डेफिनेटली देयर इज सो मच ऑफ जॉय इन द एयर, देयर इज सो मच ऑफ कलर्स इन द एयर. आई एम ड्रेस्ड अप इन अ कलरफुल वे एंड आई बिलोंग टू दिस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, विच इज़ ऑल अबाउट वेडिंग. सो आई मस्ट हैव अटेंडेड मोर देन 22 to 23 वेडिंग्स टिल द टाइम जब से मैं शो कर रही हूँ. तो वेडिंग का ईच एंड एवरी फ्लेवर अंदर बसा हुआ है, सो यहाँ आना बनता था. वो शो अब तक का एशिया का लॉन्गेस्ट रनिंग शो है एंड हाईएस्ट टीआरपी वाला शो है. सो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग. लॉट्स ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ, लॉट्स ऑफ लव. कोई फॉर्म में आप दोनों एक साथ दिखेंगे आने वाले वक्त में, या बिग बॉस? बिग बॉस आई डोंट नो. I hope so. I don't know, but yeah, definitely he is a singer. So if he'll sing some 2 lines for me, so definitely you can see me in that particular song. You can sing about your next upcoming film, no? Haryana. You can sing about your film. I recently did this film Haryana, so I'll just sing a few lines for that. तू ही है बस जिंदगी, तुझी में लगता है जी, जी गया मैं जब देखा तुझे, मैं लगा हूँ जीने जी, हो राम जी जीने जी, हो राम जी मैं तो गया हूँ जी. Thank you. Thank you so much. Thank you. To all of you, वेडिंग, यू नो एवरीवन नोज के मतलब वेडिंग का जब नाम आता है तो कितनी ब्राइटनेस एंड कितनी कलरिंग एंड कितनी हैप्पीनेस मोमेंट्स हमारी ब्रेन में ऑलरेडी आ जाते हैं. एंड एज अ सिंगर तो मैं वेडिंग को देख के ही सोचता हूँ कि यार कब परफॉर्म करने का मौका मिला. फाइनली वी आर डूइंग लॉट ऑफ शोज एंड अभी सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया एंड वी आर गेटिंग टू लॉट ऑफ थिंग टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं. इनफैक्ट मैं अभी कुछ दिन पहले ही वेडिंग शो करके आया और फिर वापस शोज़ के लिए जा रहा हूँ. तो यस, वेडिंग का नाम सुनते ही बहुत कलरिंग्स एंड खुशी वाली वाइब आ जाती है. क्रिसमस में आई एम परफॉर्मिंग इन वेडिंग शो इन बनारस एंड 31st को यस मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपना उड़ीसा को परफॉर्म कर रहा हूँ.
या एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लॉट ऑफ थिंग. अभी मेरा जो गाना है वो वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग नंबर 5 पे रहा है, गोल कप्पारा, नेहा कक्कड़ के साथ, आप सबने सुना है. फिर अपने बाजीराव है, दीवानी मस्तानी, आयत, पद्मावत का एक दिन एक जान, नीरजा का गहरा इश्क, मिर्जिया, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लॉट ऑफ थिंग. एंड काफ़ी चीज़ें अभी हो रही है, कुछ सिंगल्स भी आ रहे हैं, कुछ मूवीज़ भी आ रही है जिसको मैं ओपन अप नहीं कर पाऊँगा इन फ्रंट ऑफ यू. बट हाँ, काफ़ी चीज़ें वेटिंग पे हैं. सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. थैंक यू. तो आप सबको एडवांस में हैप्पी. Very good evening to everyone. I feel really happy to be attending the Global Business Awards and see all of you. Please बैठ जाइए. Please बैठ जाइए. मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हूँ यहीं पे. आप भी थोड़ा सा पीछे जाइए ताकि वो देख पाए. हाँ जी, थैंक यू. बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है मुझे. यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है and all of you are great achievers. I'd like to thank Naresh ji, Suhani, whose birthday it is by the way today. Happy birthday. कुशल कुंद्रा जी, वैसे बहुत कम कुंद्रा मिलते हैं मुझे. हाँ, कुंद्रा साहब नमस्ते. Raina Kundra, thank you so very much. And Nawab, you've been doing a great job. Yeah, it's always a thankless job, right? So big round of applause here for Nawab. So what are we doing here? अपने टेबल पर रखने हैं guys. Please everybody, it's my humble request because we have a very short time. And I request आप सब लोग वहाँ से आएंगे on the right hand side of the stage. You're supposed to come on the main stage and you're supposed to take your award and leave the stage from the left hand side. Please everybody. And if you guys agree with me कि आपकी टीम जो आप लोगों की live videos भी बना रहे हैं and this is Silence please. आवाज़ कहाँ से आ रही है? किनको? अच्छा कोई अंदर है तो वेट करते हैं ना 2 मिनट. जी देखिए, आपने बेशर्म रंग के दृश्य देखे होंगे. गाना काफ़ी वायरल हुआ है और हिंदुओं का बस एक ही प्रश्न है पठान के मेकर्स से और वो प्रश्न ये है, अपने फिल्म को सुर्खियों में लाने के लिए आपने हिंदुओं की आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई? क्या ये ज़रूरी था कि बेशर्म रंग गाने में आप भगवा रंग का इस्तेमाल करें? क्या ये ज़रूरी था? नहीं. आपने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम था कि ऐसा करने से गाना विवादित होगा, सुर्खियों में आएगा,
खूब चर्चा बटोरेगा, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज आपके इस गाने को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो क्या ये पब्लिसिटी का नया तरीका है? हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर जो रंग, भगवा रंग, हिंदुओं के लिए आस्था, विश्वास, श्रद्धा, शुद्धता का प्रतीक है, आप उस गाने को, उस रंग को दर्शा रहे हो एक ऐसे गाने में जिसका नाम आपने रखा बेशर्म रंग। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सही नहीं होगा? ये कहना सही नहीं होगा कि इस गाने को एक दूषित मानसिकता से फिल्माया गया? मेरे ख्याल से ये उचित होगा, ऐसा कहना उचित होगा, क्योंकि गाने के दृश्य को देखकर साफ समझ में आता है कि आपकी मानसिकता क्या है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप ऐसा काम किसी दूसरे मजहब के खिलाफ करते, अगर आप किसी दूसरे मजहब की आस्था को ठेस पहुंचाते, तो आपको क्या पता है उसका अंजाम क्या होता? आपको पता होगा, सर तन से जुदा, यही तो किया जाता है ना। इसलिए आपने ऐसा ना करके हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना ज़्यादा आसान सोचा, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जीवन का आदर करता है, सर तन से जुदा मानसिकता में विश्वास नहीं रखता है। तो मेरे ख्याल से वोक कम्युनिटी को अब जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है, और अब हम इसे सहन नहीं करेंगे। इनफ इज इनफ। आप तत्काल अपने गाने से, जिसका नाम है बेशर्म रंग, उन दृश्यों को हटाएं जिसमें भगवा रंग को दर्शाया गया है। उसके बाद आप इसे रिलीज करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे, पूरे भारत में करेंगे, क्योंकि कोई फिल्म किसी धर्म की आस्था से बढ़कर नहीं होती, कोई फिल्म किसी देश से बढ़कर नहीं होती है। इस गाने को लेकर, इस कलर को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत सारा पॉलिटिकल मुद्दा भी बहुत ही गर्म हो चुका है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस गाने से प्रॉब्लम है या कलर से? जिस तरह से को भगवा कलर पहनाया गया, इस पर बहुत ही मुद्दा हो रहा है। कलर नाम भी रख दिया है कि बेशर्म रंग। जी देखिए, आप भगवा रंग की बिकिनी पहने, भगवा रंग की साड़ी पहने, आप गाएं, नाचें, कूदें, झूमें, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप भगवा रंग को ऐसे गाने में दर्शाते हैं जिसका नाम आपने खुद रखा बेशर्म रंग, इसका क्या मतलब निकाला जाए? वोक कम्युनिटी के कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तो संतरे का रंग है। ये क्या बात हुई? कल के दिन अगर हम हरे रंग का अपमान करके ये बोलें, अरे ये तो तोते का रंग है, तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे? हमें इस तरह की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। हरा रंग और केसर रंग, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग हैं, और भगवा रंग के क्या मायने हैं ये हम सब जानते हैं। हिंदुओं के लिए भगवा रंग आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है, और ऐसे में अगर सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए आप भगवा रंग का इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे गाने में जिसका नाम है बेशर्म रंग, तो इससे साफ समझ में आता है कि आपकी मानसिकता कितनी दूषित है। देखिए, मेरा निवेदन है शाहरुख खान जी से कि वो इस देश में तनाव पैदा ना करें,
कानून व्यवस्था की जो ये है समस्या, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना करें। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी धर्म की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जानबूझकर हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था के साथ छेड़खानी की जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आगे अगर भगवान ना चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्यों तनाव पैदा किया जा रहा है भारत देश में? क्या मिलेगा? सुर्खियां पाने के लिए, हेडलाइंस ग्रैब करने के लिए? ये क्या बात हुई? मैं खंडन करती हूँ इस तरह की सोच को, इस तरह की पीआर एक्टिविटी को मैं खंडन करती हूँ। जी जी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के जो चीफ हैं खाजी अली जी, उन्होंने हाल ही में मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया कि वो पठान फिल्म का विरोध करते हैं और बहुत जल्द वो एक एफआईआर दर्ज करेंगे, एक शिकायत दर्ज करेंगे फिल्म पठान के ख़िलाफ़, और वो चाहेंगे कि पुलिस तत्काल एक एफआईआर दर्ज करे उनकी शिकायत के आधार पर। और वो ये भी कहते हैं कि शाहरुख खान जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम पर करें, पठानों को बदनाम ना करें, क्योंकि पठान, एक सच्चा पठान कभी भी किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता है। एक सच्चा पठान सभी धर्मों का आदर करता है। ये जो गाना है ये पठान की सभ्यता के खिलाफ है। चलिए जाते आते आप शाहरुख खान की टीम, PR टीम, एक्टिविटी की टीम, सोशल मीडिया पर अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? जी हाल ही में हमारे बॉलीवुड स्टार्स ने कोलकाता में ये कहा कि सोशल मीडिया एक बहुत ही नेगेटिव टॉक्सिक जगह बन गई है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, और कहा कि अब सिनेमा की दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि वो फिल्मी दुनिया से बाहर निकलकर असल ज़िंदगी में आकर देखें कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। उदयपुर के एक हिंदू दर्जी की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई। गुजरात के किशन भरवाड जो एक गाय प्रेमी थे, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई। कर्नाटक के प्रवीण नेटरू और हर्षा जो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन के पक्ष में हिजाब का विरोध किए, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ कलाकारों के पास होनी चाहिए, आम इंसान के पास नहीं होनी चाहिए? ये कैसा इंसाफ है? और ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? क्या बॉलीवुड भारत की जनता से बढ़कर है, देश से बढ़कर है? कतई नहीं। हम बॉलीवुड का बहिष्कार करते हैं। माँ भारत को हम ज़्यादा महत्व देते हैं बॉलीवुड से। माँ भारती ही हमारे लिए सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं अरे तुम तो बॉलीवुड आर्टिस्ट हो, अगर तुम बॉलीवुड का बहिष्कार करोगी तो कैसे चलेगा? बॉलीवुड की आर्टिस्ट बाद में हूँ मैं पहले एक भारतीय हूँ। माँ भारती के प्रति मेरी वफादारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बॉलीवुड के पास कई लोग हैं, बॉलीवुड के पास
दाऊद हैं, मतलब दाऊद का हाथ है, आशीर्वाद है, तो बॉलीवुड को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता हमें करना है, हमारा क्या होगा। हाँ, एंटरटेनमेंट के नाम पर आए दिन आप लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे ये चलता है? नहीं चलता है। गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। गुस्ताख श्री राम की क्या सज़ा है? गुस्ताख सीता मैया की क्या सज़ा है? गुस्ताख लक्ष्मी माँ की क्या सज़ा है? गुस्ताख दुर्गा माँ की क्या सज़ा है? गुस्ताख शिवलिंग की क्या सज़ा है? गुस्ताख भगवान राम की क्या सज़ा है? कोई सज़ा नहीं है। क्यों? ये नाइंसाफ़ी क्यों? मैं खंडन करती हूँ इन दोहरे मापदंडों का। वंदे मातरम, जय हिंद।